My very dear students of grade 5, I hope you all are fine. The chapter which we have to do for the revision of our second term is Beyond the Earth. It's lesson number 12 from your book, page number 133, and it has been related with your physics portion. So far we have discussed about the biology section, and few of the chapters was they were related with your chemistry portion. Now the chapter it is related with your physics. Physics is actually the branch of the science of that it's basically consists of, or it is basically concerned with the heat, energy, astronomy, about different types of planets or the mountains or the electricity. Various things are there which are basically connected with the physics. And as far as the Earth is related, you all know that scientists have been curious about knowing that is the Earth only planet. So far they have been observed from different sources that the solar system is not only consist of just one Earth planet, but it is basically comprised of the different planets. So far we have 9 planets, but the last one, that is the Pluto, has been eradicated from the solar system because there was no gravity. So we have left only with 8 planets, in which the Earth is the third one. First, you all know that is the Mercury, then Venus, then Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And but the only existing life is the planet which is called as the Earth, because the temperature it's suitable, and the distance from the sun is as well very comfortable. But the nearest planets like the Mercury and the Venus, there the life cannot be existing because of the high temperature. And so जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, the life is again becoming hard because of the low in temperature, like Uranus or the Saturn. These are the very coolest planets. The life has been existing in Earth from so many years, and they have been showing it like a solar system in which you can see easily that there are the asteroid belts. You know that in between the Jupiter and the Mars, what do you understand by the term the asteroid belt? They are actually made up of the asteroids. As far as the satellites are concerned, आपने नाम ज़रूर सुना होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का, जो कि स्पेस में छोड़ा जा रहा होता है और जो जिसके मुख्तलिफ फंक्शन है, जिसको भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे. बट एज़ फार एज़ द नेचुरल satellite is concerned, there is a moon which is present in the Earth, and we have got just one moon. But in the Mars there are 2 moons. In Jupiter, there are more than 60 moons. Saturn has got just at least 56. Uranus has got 27. Neptune has got 13. And Mercury and Venus has no moon. Okay? And there is, it was thought in the initial days of the life that there is no life. और ये तो खैर जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ना हवा है ना पानी है, उसके सरफेस पे ना क्लाउड्स हैं, ना कोई ख़ास वेदर, और ना बारिश ना हवा, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइट का जब वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है. लेकिन अभी कुछ सालों से, यानी अब तक तो यही पता था कि लाइफ जो है मून के अंदर बहुत सारे माउंटेन्स और क्रेटर्स मौजूद हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. और दूसरी चीज़ ये कि एक हमारा ये नियरेस्ट नेबर है सन, हमारे अर्थ का. ठीक है, स्पेस का जो ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है वो हमारा मून ही है, जो तकरीबन 380,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है. और लेकिन जब मैंने आपको अभी ये बताया कि किसी ज़माने में साइंटिस्ट यही सोचते थे कि मून बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई है, लेकिन अब वो इस बात पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि मे बी इट इज़ देयर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो कि ठंड की वजह से जो है वो बर्फ़ बन चुकी है उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स पे. और अब उन्होंने जो है इस बात का क्लेम भी किया है कि 1972 में उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को, जिसमें 6 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स क्रूज़ थे, उन्हें जो है वो इस प्लैनेट्स के इस मून में
यानी कह सकते हैं आप थ्रू द डिफरेंट सैटेलाइट्स, और जो है ये रॉकेट्स के ज़रिए जो है वो वहाँ पर भेजा, और उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस की, और तकरीबन यानी उनकी अपनी ये एक इन्वेस्टिगेशन है जो सामने आई कि तकरीबन, और उन्होंने फिर वहाँ से 400 केजी का जो है 400 केजी का मून का रॉक जो है वो भी अपने साथ वो वापस लेकर आए, वो एस्ट्रोनॉट, ताकि वो मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। एज़ फार एज़ द एस्टेरॉइड्स आर कंसर्न, जैसे अभी आपको मैंने एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में बताया था कि इट्स बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर, और ये कोई प्लैनेट नहीं है बल्कि इट्स लाइक अ रॉकी ऑब्जेक्ट। और अब तक जो सबसे छोटा साइज़ का जो एस्टेरॉइड डिस्कवर किया गया है वो सिर्फ 2 किलोमीटर, और अब तक जो मैक्सिमम या लार्जेस्ट एस्टेरॉइड डिस्कवर हुआ है वो सेरेस के नाम से था, जो तकरीबन 998 किलोमीटर तकरीबन इसकी लेंथ थी। लेकिन ये भी बात बताई जा रही है कि एस्टेरॉइड जो है वो एक्चुअली क्या है, दे आर कॉल्ड एज द शूटिंग स्टार और मेटेओराइड से, जैसे शहाब साकिब का आपने नाम सुना होगा, बेसिकली मेड अप ऑफ द डस्ट एंड रॉक्स, और जब ये ज़मीन के करीब आ रहे होते हैं तो दे बर्न अप, एक्चुअली दे बर्न अप एंड दे बिकम द शूटिंग स्टार। और ये बात भी इन्होंने एस्टेरॉइड्स में के डिस्कवर हुई है कि अब तक जो है वो पार्ट ऑफ मेटेओराइड की यहाँ पे आपको डायग्राम भी थोड़ी सी मेंशन की गई है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखें कि पार्ट ऑफ अ मेटेओराइड जो है वो यहाँ पे डिस्कवर किया गया था, जो तकरीबन मतलब बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो ज़मीन पे गिरा, उसके नतीजे में जो है वो बहुत ज़्यादा जब ज़मीन पे हिट किया गया तो कुछ हिस्सा पोर्शन जो है वो ज़मीन का बाहर आ गया। लेकिन ये तकरीबन ये इन्होंने एस्टेरॉइड की बात जिक्र जो किया है, ये किया है कि तकरीबन 65 मिलियन ईयर अगो जो है ये इन्होंने, अब मालूम तो अब हुआ है, लेकिन ये जो डिस्कवरी की गई है ये बता रहे हैं कि तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स अगो जो था ये एस्टेरॉइड जो है इसने हिट किया था। लिहाजा और अगर कॉमेट की बात की जाए तो कॉमेट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ बेसिकली अ न्यूक्लियस, जिसमें डस्ट और आइस का ये एक मिक्सचर होता है। ये भी जो है जिसको हम कह सकते हैं दुमदार सितारा आम अल्फाज में, जैसे एस्टेरॉइड्स को या मेटेओर्स और शूटिंग स्टार को अब शहाब साकिब कहते हैं, कॉमेट्स को हम दुमदार सितारा कह सकते हैं, जो कि बहुत बर्फ़ का एक तोदा है जिसमें आइस और डस्ट का ये मिक्सचर होता है, और ये एक टेल की शक्ल में जो है वो बहुत जाइंट टेल जो है वो कभी कभी बहुत क्लोज़ आने लग की कोशिश करता है सन का, लेकिन चूँकि सन की हीट की वजह से ये वापस स्पेस में दोबारा से कभी ना आने के लिए हज़ारों साल के लिए वापस स्पेस में चला जाता है। As far as the satellites are concerned, that satellites जो है वो स्पेस में भेजे जा रहे होते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस आ गए हैं, तो अब तक जो बहुत ज़्यादा सबसे पहले जो है वो 1957 में एक डिस्कवर या एक उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने भेजे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए। सैटेलाइट बेसिकली क्यों भेजे जा रहे होते हैं, आमतौर से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेस में, लेकिन ये कि ये सैटेलाइट हमेशा अर्थ के अराउंड जो है वो हमेशा के लिए ऑर्बिट नहीं कर पाता, या जो है वो फॉर्मेशन उसकी हमेशा के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो जाता है स्पेस पे तो एक तो इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, दूसरा ये कि आहिस्ता मूव करते इतनी स्लो हो जाती है कि वो वापस अर्थ की तरफ ग्रेविटी की वजह से वो वापस आ जाता है, या बाद वक्त ऐसा भी होता है कि फ्रिक्शन हो जाती है कुछ सैटेलाइट्स के आपस में, जिसकी वजह से वो बाद औक़ात जो है वो एक दूसरे के साथ हर्टल भी कर सकते हैं। तो लिहाजा लेकिन अब ये है कि बहुत सारे मैन्ड सैटेलाइट्स भी हैं जिसमें मैन्ड स्टेशंस तामीर किए गए हैं, ताकि कुछ लोग जो है वो कुछ क्रूज़ जो है अब तक मतलब ज़्यादातर जो सैटेलाइट्स होते हैं बेसिकली दे आर अनमैन्ड, लेकिन कुछ मैन्ड स्पेस स्टेशंस वगैरह जो हैं वो भी तामीर किए जा रहे हैं, और ये काफ़ी मेहनत से तकरीबन 2011 में जो है, बल्कि 1998 में स्टेशन स्टार्ट किया गया था और 2011 में ये तकरीबन कंप्लीट हुआ था। और इसमें मतलब इसका फ़ायदा ये था मैन्ड स्पेस स्टेशंस का और कि इसमें जो है ना इंसान यानी लोगों की मौजूदगी में कुछ एस्ट्रोनॉट्स या कुछ क्रूज़ जो हैं वो उसमें वर्क किया करते थे, और ये बाकायदा एक ISS के नाम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें तकरीबन काफ़ी मुल्कों ने, जैसे अमेरिका है, रशिया है, जापान है, कनाडा है और यूरोप के कुछ और कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने, उनका एक जॉइंट प्रोजेक्ट था
और जो ये अबव हो जाता यानी ज़मीन से तकरीबन 350 किलोमीटर की हाइट पर ये स्पेस स्टेशन जो है ये रन कर सकता था। लेकिन ज़्यादातर जो स्पेस स्टेशन होते हैं वो आपको पता है अनमैन्ड होते हैं, जो कि स्पेस में छोड़े जाते हैं। और उसके अब बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, यानी कुछ ऐसे हैं जो वेदर सैटेलाइट्स हैं, यानी मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो बाहर जाके ये पता करते हैं कि ज़मीन में किस किस जगह पे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गए हैं, या कहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गई है, या इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्या नुकसान पहुँचा रही हैं हमारे एनवायरनमेंट को। तो यानी भेजे जाते हैं स्पेस किस तरह के स्टेशंस। या जैसे आपने देखा है ना, अभी हम कितने आराम से करीम और उबर की और सर्विसेज जो है वो जीपीएस के ज़रिए से इंस्टॉल कर लेते हैं और अपने आराम से मालूमात कर लेते हैं कि हमारा ये नेविगेशन सिस्टम कहाँ मौजूद है, ग्लोबल पोजिशनर सिस्टम जिसको हम जीपीएस भी कहते हैं। तो ये नेविगेशन सैटेलाइट से आप इमीडिएटली जो है वो ट्रेस आउट कर जाते हैं कि कहाँ से कौन सी व्हीकल, टैक्सीज या डिलीवरी व्हीकल्स कहाँ पे मूव कर रही हैं। फिर इसी तरह से रेस्क्यू सैटेलाइट्स होते हैं जो कि जिनका ताल्लुक जो है वो बेसिकली एयरक्राफ्ट्स और शिप्स वगैरह से होता है, ताकि फौरी तौर पर ये पता चल जाए कि अगर कोई शिप है, अगर उसको कोई खुदा ना खास्ता वो ट्रबल में है कि कहीं या कोई क्रैश हो रहा है एयरक्राफ्ट में, तो फौरी तौर पर ये सैटेलाइट्स जो है वो फिर रेस्क्यू की टीम जो है यानी मदद के लिए भेजते हैं। इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट जो कि हबल टेलीस्कोप का नाम शायद सुना भी होगा, ये स्पेस में भेजे जाते हैं क्योंकि ज़मीन और स्पेस के दरमियान जो हिंड्रेंस आ रही होती है बाज़ औक़ात, इसकी भी जब स्पेस पे चले जाते हैं टेलीस्कोप्स, हबल टेलीस्कोप है जैसे, तो वहाँ पे बहुत क्लियरली उनको सारे इमेजेस मिल जाते हैं कि किस तरह से रेज वगैरह या प्लैनेट्स की गैलेक्सीज़ वगैरह जो है उनके बारे में स्टडी की जा सकती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर दैट चैप्टर। इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, हमारी लाइफ से रिलेटेड। और अभी जो है रिसेंट जो है इसके ज़रिए से ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से बता दी जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि चाँद जो है आज चाँद गिरन है या सूरज गिरन है, या सूरज या किस दिन ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स या हरिकेन्स, बारिश, मतलब इन चीज़ों की कैसे पेशन गोई कर दी जाती है, ये इन्हीं सैटेलाइट्स के ज़रिए से ये सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं कि बादल जो है तो कहाँ मौजूद है, हवा का कहाँ कम दबाव है, कहाँ ज़्यादा दबाव है। तो ये सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन जो है ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए पहले से इंफॉर्मेशंस ले लेता है, ताकि बाद के जो भी उसके लिए इंसान अपने लिए प्रिकॉशंस वगैरह कर सकता है वो कर ले। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर। आई थिंक ये भी बहुत आसान इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।